is the next part video of your motion in one dimension. So in last video we had spoken about displacement time graph and velocity time graph. So in this video we are going to talk about acceleration time graph. Okay. So as we have discussed that अगर कभी मैं graph draw कर रहा हूँ, so we have got two axes. ठीक है, this is your x axis, this is your y axis. Yes or no? ठीक है. So x axis will be always your time. ठीक है, हम लोग ने डिस्कस किया था. ठीक है, y axis is your keep on changing it. Yes or no? ये आपका चेंज होते रहता है. ठीक है, earlier it was displacement, then it became velocity. Now here we are going to start with what acceleration time graph. ठीक है. So in this video we're going to talk about acceleration time graph and the earlier two videos जहाँ पे हम लोग ने दो ग्राफ सीखे. ठीक है. On that, how to solve those problems. ठीक है, कैसे कैसे sums दिए हुए, how to tackle it, how to solve those sums. ठीक है. So in that this video we're going to talk about all those things, right? So first of all, the graph is what? Acceleration and time graph. Now, if I say there is no acceleration, okay? If I say there is no acceleration, acceleration is what? You can say acceleration is zero, right? Acceleration is zero. So there are two conditions, right? When acceleration is zero, okay? Which two conditions? Acceleration is zero when either body is at rest. Obviously अगर body क्या रहेगा, rest पे रहेगा, तो there is no acceleration. ठीक है, body move नहीं हो रहा है, तो acceleration क्या नहीं रहेगा, zero रहेगा. Yes or no? And the second is what? This is what? First. Second is what? When velocity. ठीक है, change in velocity is what? Constant with respect to time. So change in velocity, ठीक है, change in velocity with respect to time is constant. So there are two conditions. When your acceleration is zero, the first condition is your body is at rest, or either your changing velocity with respect to time is what? Constant. That means your velocity is what? Constant. Yes or no? The change in velocity of continuously constant. तो acceleration भी क्या रहेगा? Constant रहेगा. मतलब zero रहेगा. There is no acceleration. कि कार क्या हो रहा है? Accelerate नहीं हो रहा है. Getting my point. अगर मैं तुम लोग को एग्जांपल दूं, let's draw a table. ठीक है, यहाँ पे तुम लोग को acceleration और time दिया हुआ है. This is your acceleration, this is your velocity and this is your time. ठीक है, velocity और time का तुम लोग को table दिया हुआ है. ठीक है, so if I talk about time 0, velocity 0 था, time 1 second हो गया, velocity 10 हो गया, time 2 हो गया, velocity 20 हो गया, time 3 हो गया, velocity 30 हो गया, time 4 हो गया, velocity 40 हो गया. So if you see, ठीक है, change in time, 10 minus 0, 1 minus 0. Yes or no? Acceleration क्या तुम लोग का? Change in velocity upon time. क्या फॉर्मूला? A is equal to v minus u by t. Yes or no? So v minus u, ये v बन गया, ये u बन गया, v minus u by t 10 हो गया. फिर again 20 minus 10. Yes or no? 20 minus 10 upon 2 minus 1. So again it is 10. So again acceleration is 10. Again 30 minus 20 is 10. 3 minus 2 is again what? 3 minus 2 कितना है बेटा? 3 minus 2, 30 minus 20 is 10. 3 minus 2 is 1. So again 10 आया. Yes or no? That means here the acceleration is 10. Acceleration is 10. Sorry. Change in velocity. Yes or no? Acceleration is what? 0. Yes or no? There is no acceleration changing. यहाँ पे velocity remains constant, right? With respect to this. That means the acceleration is 0. There is no acceleration. Yes or no? Every time तुम लोग का acceleration क्या है? Change नहीं हो रहा है. Acceleration क्या है? 0 है, right? यहाँ पे acceleration 10 है, यहाँ पे acceleration 10 है, यहाँ पे acceleration 10 है, यहाँ पे acceleration 10 है. There is change in acceleration? No. Change in acceleration is 0. मतलब यहाँ पे acceleration change ही नहीं हो रहा है. हर एक जगह पे acceleration क्या है? 10 है. Yes or no? That means change in acceleration is 0. Acceleration change नहीं हो रहा है. वो कभी होगा जब your velocity with respect to time is constant, is uniform. Yes or no? So तभी ग्राफ कैसे आएगा? When acceleration is 0, that means acceleration is not changing. Yes or no? So wherever there is no change in acceleration, your graph will be here. Okay, I'll draw it. Okay, so I'll write it out. Okay. So if a body is stationary or if it is moving with a uniform velocity, if a body is what? Stationary or rest or moving with a what? Uniform velocity. This is the uniform velocity. Yes or no? At that time, your acceleration is what? Okay, acceleration time graph in such a case, a straight line concluding with our time axis is what? Basically this line. Okay, if I draw this line, okay, same line होगा because acceleration 0 है ना. So if I rub this, okay, point
ये पूरा रब कर रहा हूं मैं, ठीक है। एक्सेलरेशन क्या रहेगा, हम लोग ने देखा 0 रहेगा, यस और नो। सो एक्सेलरेशन इज 0, दिस इज ओरिजिनल ग्राफ, ये आपका ओरिजिनल ग्राफ है, ओरिजिनल ग्राफ है आपका, यस और नो। एक्सेलरेशन यहाँ पे क्या है, ये एक्सेलरेशन तो 0, फिर 10, 20, 30, 40, 50, ऑब्वियसली मीटर पर सेकेंड स्क्वायर रहेगा। और ये टाइम है, कितना टाइम, 5, 10, 15, ब्ला 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 आगे तक रहेगा। सो एक्सेलरेशन इज 0, मतलब ये 0 यहाँ पे ना, सो ग्राफ विल बी लाइक दिस, ठीक है। यही तुम लोग का एक्सेस रहेगा, ये यस और दिस इज योर ग्राफ, समझा। बिकॉज एक्सेलरेशन इज 0 ना, ये एक्सेलरेशन इज 0, सो वी आर डूइंग ऑन एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ। सो एक्सेलरेशन 0 कभी है, व्हेन बॉडी स्टेशनरी और आइदर there is a change in velocity is constant, मतलब uniform velocity, simple uniform velocity याद रखो, यहाँ पे क्या रहेगा, uniform velocity. So at that time तो your graph will be something like this, yes or no. तो acceleration 0 रहेगा, मतलब there is no change in acceleration, there is no change in acceleration, acceleration is 0. Clear है? Now the second graph is what, when the acceleration is constant, we are talking about acceleration is constant, yes or no, ठीक है। So acceleration constant, ठीक है। सो एक्सेलरेशन कांस्टेंट कभी रहेगा, अगेन आई ड्रॉ अ सेम ग्राफ, केस नंबर 2 है ये, यहाँ पे क्या है, ये एक्स एक्सिस है, वाई एक्सिस है, ये टाइम है इन सेकेंड्स, यहाँ पे एक्सेलरेशन है मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, यस यस और नो। सो इफ आई ड्रॉ हियर 0, हियर 10, 20, 30, 40, 50, क्लियर, एंड यहाँ पे 10, 20, 30, 40, 50. Let's say your acceleration is constant and 40. ठीक है, that means your car is what basically traveling with a constant velocity, is traveling with a constant velocity, non-uniform velocity here. The acceleration is constant. Yes, also if your acceleration is constant, see, if the velocity of a body is in a motion increasing uniformly with time, the acceleration is constant. It is increasing uniformly with time. It is increasing uniformly. मैंने यहाँ पे ड्रॉ किया, राइट, यहाँ पे जो मैंने टेबल ड्रॉ किया was simple, right, सेम था, it was increasing uniformly increase हो रहा था। जब मेरा क्या था 0, 0, फिर क्या था 1, 10, 2, 20, 3, 30, ठीक है, 4 your velocity and time, ठीक है, 4, 40. So this is your graph, right? At this moment your acceleration सब जगह पे क्या, a equal to 10, a equal to 10, 10. That means your acceleration is constant. Yes or no, your acceleration is constant. तो ग्राफ कैसे आएगा, acceleration is everywhere 10, acceleration सब जगह पे 10 है, तो your graph will be this, ठीक है, 10. Because your time increases, दिख रहा है यहाँ पे टाइम 0, 1, 2, 3, 4 हो रहा है, यहाँ पे टाइम इंक्रीज हो रहा है, but your acceleration all throughout remains what, 10. Yes or no? So this is your acceleration when acceleration is constant. First graph we discuss about when acceleration is 0. Yes or no? Second we are talking about acceleration constant है, ये रहा 10, acceleration सब जगह पे क्या constant 10 है. Getting my point? Yes or no? And now this is the acceleration we are talking about. Similarly, अगर क्या हो रहा है, यहाँ पे क्या हो रहा है, your velocities keep on increasing uniformly. If let's say your velocity keep on decreasing uniformly, reverse of that. Again the velocity is uniform, but it is decreasing uniformly. Here the velocity is increasing uniformly. Here, can you see this? This, your velocity is increasing uniformly. ये रहा, ठीक है। अगर let's say similarly your velocity decreases uniformly, yes or no, अगर मैं ये टेबल में रिवर्स कर देता हूँ, लेट्स से मैं वो टेबल को रिवर्स कर देता हूँ, सो इफ आई एम डूइंग अ रिवर्स टेबल, सो व्हाट आई कैन डू इज दिस वन, ये टेबल को चलो रिवर्स कर देता हूँ, सो व्हाट आई कैन डू इज आई कैन राइट योर वेलोसिटी, आई कैन राइट टाइम, सो वेलोसिटी, योर अर्लियर वेलोसिटी इज 50 5 सेकंड पे, 40 4 सेकंड पे, देन 30 3 सेकंड पे, 20 2 सेकंड पे, 10 1 सेकंड पे. So if I do 40 minus 50, yes or no? 40 minus 50. Getting my point? Oh, time will be not opposite. Here will be 1 second, 2, 3, 4, 5. Okay. Sorry, man. Okay. Yes or no? So here 40 minus 50. Yes or no? 40 minus 50 is minus 10, and 2 minus 1 is 1. That means your acceleration is minus 10. Again here 30 minus 40. 3 minus 2 is 1. 40 minus 30 is what? Minus 10. So again the acceleration is what? Minus 10. Again the acceleration. So everywhere the acceleration is minus 10 because the velocity is decreasing uniformly. इसके earlier table में velocity was increasing uniformly. Yes or no? Clear? ठीक है? So this was okay. I'll do one thing. I'll draw both the
टेबल एंड बोथ द ग्राफ साइमल्टेनियसली. ठीक है, यहाँ पे टेबल लिख रहा हूं. व्हेन वेलोसिटी इज इंक्रीजिंग एंड व्हेन वेलोसिटी इज डिक्रीजिंग यूनिफॉर्मली. यस. सो यहाँ पे टेबल ड्रॉ कर रहा हूं. ये रहा तुम लोग का, यहाँ पे टेबल ड्रॉ कर रहा हूं. यहाँ पे क्या वेलोसिटी, यहाँ पे टाइम है. 0 0, देन यू हैव 10 1 20 2 33. ठीक है, ज्यादा नहीं लिखता वैल्यूज. सेम चीज यहाँ पे 0 है. ठीक है, यस और नो 0 है. यहाँ पे 1 2 3. ठीक है, 3 तक ही लिखता हूँ. यस, यहाँ पे क्या आएगा तुम लोग का 30 20 10 और 0. ठीक है, समझा. यहाँ पे इफ यू सी वेलोसिटी इज इंक्रीजिंग 0 से 10 10 to 20 20 to 30. यस और एक्सेलरेशन सब जगह पे क्या है 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर. ठीक है, कैलकुलेट. लेट्स कैलकुलेट. कैसे करूंगा मैं? क्या है v इज इक्वल टू क्या है, सॉरी a इज इक्वल टू क्या है v माइनस u बाय t. और जो v10. ठीक है, फाइनल वेलोसिटी इनिशियल कितना था 0. सो 10 माइनस 0 अपॉन 1 माइनस 0. आंसर इज 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर. सिमिलरली इसके लिए करो 20 माइनस 10. ठीक है, 10 2 माइनस 1 1. सो अगेन 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर. सेम सबका क्या आएगा 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर. एक्सेलरेशन. ठीक है, acceleration is positive because the velocity is increasing uniformly. Yes. Similarly, if I talk about this, यहाँ पे क्या हो रहा है तुम लोग का a is equal to क्या है v minus u by t. What is v? 20. What is initial velocity? 30. तो क्या रहेगा 20 minus 30 upon क्या रहेगा 1 minus 0. So answer is minus 10 meter per second square. So acceleration. This is a retardation. Basically retardation. यहाँ पे क्या हो रहा है? Velocity is decreasing and it is coming at rest. Can you see that? ये velocity ये time है. So it is coming at rest. मतलब यहाँ पे डीएक्सेलरेशन होगा, रिटार्डेशन होगा. गेटिंग माय पॉइंट. तो दोनों का ग्राफ कैसे रहेगा? दोनों जगह पे क्या है वैल्यूज कांस्टेंट है. यहाँ पे 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, यहाँ पे माइनस 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर है. ठीक है, सो दोनों का ग्राफ कैसे रहेगा? ठीक है, हाफ वी कैन ड्रॉ अ ग्राफ. द ग्राफ फॉर बोथ ऑफ दिस विल बी सिमिलर, काइंड ऑफ सिमिलर टू ईच अदर. सो ग्राफ विल बी समथिंग लाइक दिस. हियर आई हैव एक्स एक्सिस, वाई सिमिलरली हियर. ठीक है, सो हियर आई हैव 0 10 20 30. I have 0 1 2 3. Same cheese I'll draw here. Here I have 0 10 0. Here minus 10 because minus 10 इसका आंसर क्या था? minus 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर. इसका क्या है 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर. राइट. So here I can write 0 1 2 3 4. Right. So your graph for this will be this one. A straight line. Parallel to x-axis, a straight line parallel to x-axis. ठीक है, and above the x-axis, that means positive x-axis. Your x and y both are positive. Yes or no? मैथ्स में तुम लोग ने पढ़ा रहेगा. ठीक है, फर्स्ट क्वाड्रेंट है ये, इसको फर्स्ट क्वाड्रेंट बोलते हैं. Yes or no? Your x and y both are what? Positive in first quadrant. But this is your first quadrant. This is your fourth quadrant. In fourth quadrant, your x is negative. So minus 10. Yes or no? So your graph for this will be, अगर मैं ड्रॉ करूं, will be यहाँ पे क्या है minus 10 है, will be like this. ठीक है, again parallel to x axis but below the x axis. Yes or no? Again parallel to x axis. Yes or no? Or parallel to what time axis? Because acceleration is constant. Parallel to time axis or x axis. Above the x axis, below the x axis. Above the x axis will give me acceleration, constant acceleration. Below this will give me constant retardation. Yes or no? Will give me constant retardation. यही डिफरेंस है दोनों के ग्राफ के बीच में. समझा कैसे है? वेरी गुड. ठीक है, सो द थर्ड केस, ये क्या था? सेकंड केस. फर्स्ट केस एक्सेलरेशन 0, सेकंड केस एक्सेलरेशन कांस्टेंट. नाउ द थर्ड केस जहां पे क्या रहेगा तुम लोग का? ऑब्वियसली एक्सेलरेशन क्या रहेगा? वेरी होते रहेगा. एक्सेलरेशन वेरी कभी होगा? जब भी तुम लोग का वेलोसिटी वेरी हो रहा है. यस और नो? एक्सेलरेशन वेरी कभी होगा? जब भी वेलोसिटी वेरी हो रहा है. तो कैसे आएगा? मैं अगर ड्रॉ कर रहा हूं, ये रहा एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ. सो काइंड ऑफ ये ऐसे भी हो सकता है ग्राफ. ठीक है, तुम लोग ऐसे ग्राफ हो सकता है, ऐसे हो सकता है. क्यों? ये क्यों होगा? बिकॉज क्या हो सकता है? ये अगर करूंगा तो ये रिटार्डेशन बता रहा है, ये करूंगा तो ये एक्सेलरेशन बता रहा है. यस और नो? ऐसे भी हो सकता है कि इंक्रीज हो रहा है, फिर एक पॉइंट पे आके वो कांस्टेंट हो गया एक्सेलरेशन. ऐसे भी हो सकता है. यस और नो? अगर मैं और कोई ग्राफ ड्रॉ करूंगा, लेट्स से इफ आई एम ड्राइंग समथिंग एल्स, लेट्स ड्रॉ समथिंग एल्स. ठीक है, यहाँ पे वेरी है. इट कैन बी एनीथिंग, वी हैव नो आइडिया अबाउट इट. ठीक है, दैट डिपेंड्स ऑन योर व्हाट? डेटा. अगर मैं बोलूंगा पहले ये क्या हो गया? एक्सेलरेट हो रहा है, ये एक्सेलरेट हो रहा है. फिर ये क्या है तुम लोग का? एक्सेलरेशन कांस्टेंट है, एक्सेलरेशन और टाइम. यहाँ पे एक्सेलरेशन क्या हो रहा है? इंक्रीज हो रहा है. समझा? तो ये एक्सेलरेट हो रहा है, बॉडी इज एक्सेलरेटिंग.
समझा? यहाँ पे 0, फिर 10, फिर 20, फिर 30 पे आके क्या हो गया? कांस्टेंट हो गया. सो 0 से 30 तक क्या हो गया? एक्सेलरेट हुआ. फिर 30 पे क्या है? कांस्टेंट है, फिर वापस एक्सेलरेट हो रहा है. सो 30 से क्या हो गया? 40, 50, 60 तक गया. ये रहा 60 पे. यस और नो? देन अगर मैं इसको कंटिन्यू करूं ये ग्राफ को, तो वो क्या कर रहा है? इट्स कमिंग डाउन एंड क्या हो रहा है? डी एक्सेलरेट हो रहा है. यस और नो? इट इज डी एक्सेलरेटिंग. गेटिंग माई पॉइंट? वो ठीक है, एक्सेलरेट हो रहा है. दैट मीन्स ये क्या हो गया? एक्सेलरेट. यहाँ पे एक्सेलरेशन हो रहा है. यहाँ पे एक्सेलरेशन क्या है? कांस्टेंट 30 है. यस और नो? यहाँ पे क्या हो रहा है? वापस एक्सेलरेट हो रहा है. ये क्या हो रहा है? ये तुम लोग का क्या है? ये दिस इज योर व्हाट? बेसिकली रिटार्डेशन और डी एक्सेलरेशन. सो एक्सेलरेशन वेरी होगा विद रिस्पेक्ट टू योर स्पीड. ये क्या है? नॉन यूनिफॉर्म है. यस और नो? रैंडमली कैसे भी हो रहा है. ठीक है, ऐसे ग्राफ आ सकते हैं रैंडमली, बिकॉज डिपेंड करता है वेलोसिटी. वेलोसिटी का ग्राफ कैसे? कैन बी एनी कर्व. ठीक है, ऐसा कोई भी कर्व हो सकता है एक्सेलरेशन के लिए, बिकॉज वेरी हो रहा है, रैंडम मोशन है. क्लियरली समझ रहा है? यस और नो? एग्जाम्पल डे टू डे लाइफ में. ठीक है, वी आर गोइंग ऑन हाईवे, हाईवे से ट्रैफिक, ट्रैफिक से हाईवे, हाईवे से ट्रैफिक. तो ये क्या होगा? रैंडम एक्सेलरेशन होगा. हाईवे पे क्या होगा? मैं एक्सेलरेट करूंगा, 70, 80 पे भगाऊंगा मैं. ट्रैफिक है, आई विल बी 20, 30, 20, 30, 20, 30. दैट मीन्स एक्सेलरेशन, डी एक्सेलरेशन, एक्सेलरेशन, डी एक्सेलरेशन. सो रैंडम कर्व कैन बी एनीथिंग, बिकॉज नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी है. नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन देगा. क्लियर? सो दिस वाज ऑल अबाउट व्हाट? एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ. लास्ट वीडियो में बोला था बहुत इजी है. ठीक है, इतना ही टॉपिक है, इतना डेप्थ में नहीं है. नाउ वी गोना स्टार्ट अबाउट द व्हाट? द क्वेश्चन आंसर्स. ठीक है, और वी कैन से द सम्स. How to solve the graphical sums. ठीक है, so whatever solve examples are given in your textbook. ठीक है, out of those there are 7 questions. I'll be solving 5 questions for you guys. ठीक है, प्लीज अच्छे से जान दो. 5 सिलेक्ट करके सब कुछ कवर कर रहा हूं मैं. सो प्लीज मेक श्योर यू कॉन्सेंट्रेट, यू अंडरस्टैंड ईच एंड एवरी पॉइंट, कैसे कैलकुलेट करना है. यस और नो? आई विल बी स्टार्टिंग विद द फर्स्ट सम ऑफ योर सॉल्व्ड एग्जाम्पल. ठीक है, मैं ड्रॉ भी करूंगा, मैं डेटा भी लिखूंगा, आई विल बी राइटिंग एवरीथिंग. ठीक है, यस. सो फर्स्ट क्या है तुम लोग का? ये तुम लोग का डेटा गिवन है. यहाँ पे डेटा में क्या गिवन है? यहाँ पे तुम लोग को डिस्प्लेसमेंट दिया, तुम लोग को टाइम दिया हुआ है. क्या बोला है तुम लोग को? 0, 0, फिर क्या दिया? 1, 10, 2, 20, 3, 30, 4, 40, 5, 50. ये डेटा गिवन है. अभी क्या बोला है? रिप्रेजेंट द डिस्टेंस ऑफ अ कार इन अ डिफरेंट इंस्टेंट. ठीक है, ड्रॉ डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ. नाउ इफ यू कैन नोटिस, ये डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ मुझे ड्रॉ करना है, राइट? ओके, मैं इजीली ड्रॉ कर सकता हूं, मेरे पास डेटा है, आई कैन ड्रॉ. बट कैन यू जस्ट गेस के ये मेरा जो डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ होगा वो क्या होगा? इट विल बी यूनिफॉर्म, इट विल बी नॉन यूनिफॉर्म, इट विल बी अ स्ट्रेट लाइन, इट विल बी अ पैरेलल थिंग. क्या होगा? ठीक है, इट विल बी योर यूनिफॉर्म, बिकॉज क्या हो रहा है? डिस्टेंस. ठीक है, यूनिफॉर्म डिस्टेंस. ये मैं ड्रॉ कर दो. चलो पहले ये तुम लोग का टाइम है. यहाँ पे 0 टाइम क्या दिया हुआ है? 10, 20, 30, 40, 50. क्लियर? यहाँ पे क्या दिया हुआ तुम लोग को? ओके सॉरी, 10, 1, 2, 3, 4 दिया हुआ है. 1, 2, 3, 4, 5. ठीक है, एंड यहाँ पे तुम लोग को डिस्प्लेसमेंट कितना दिया? 10, 20, 30, 40, 50. ठीक है, ये तुम लोग का डिस्प्लेसमेंट है. ये तुम लोग का y एक्सिस है, ये तुम लोग का x एक्सिस है. यहाँ पे क्या? टाइम इन सेकेंड्स है. यहाँ पे डिस्टेंस इन मीटर्स है. सब कुछ लिखना इंपॉर्टेंट है. ये सब डिटेल चाहिए जब भी तुम लोग ग्राफ ड्रॉ कर रहे हो. ठीक है, कुछ भी वैसे ही रहेगा, मार्क्स नहीं मिलेगा. ना वेल ड्रॉ ग्राफ. ठीक है, क्या है ग्राफ में? कि 0 सेकंड पे 0 है, फर्स्ट सेकंड पे कितना है? कितना है? ये रहा. If I draw, this is your graph, right? ठीक है, ये क्या इंडिकेट करता है? हम लोग ने पढ़ा. ठीक है, if a graph is a straight line, ठीक है, inclined on your x axis and passing through origin, that means it indicates uniform displacement, uniform velocity. So uniform velocity है ना यहाँ पे? Yes or no? Uniform velocity है. क्यों? Because displacement time graph will give me velocity. So this is your uniform velocity. Yes or no? तो ग्राफ क्या बता रहा है? ठीक है, it is uniform or non-uniform. ठीक है, so obviously the graph is showing what? Uniform velocity. Uniform velocity है ये रहा. ठीक है, velocity फाइंड करना है, कर सकते हो हम लोग. क्रॉस चेक करना है, कर सकते हो. velocity is equal to what? Displacement upon टाइम. ठीक है, फर्स्ट वाला करते हैं यहाँ पे. ठीक है, डिस्प्लेसमेंट कितना है तुम लोग का? 10. टाइम कितना है? ये तो 10/1. ठीक है, फिर दूसरे के लिए करेंगे 20/2, तीसरे के लिए करेंगे 30/3, फिर चौथे के लिए करेंगे
4. So if you notice, ठीक है, everywhere your velocity is what 10 meter per second. Check. ये 10 आया, 20 by 2 is 10, 30 by 3 is 10, 40 by 4 is 10, 50 by 5 is 10. That means this is a uniform velocity. Displacement time graph gives me velocity. That means this is your graph. ये graph आना चाहिए. And this graph indicates uniform velocity. ये uniform velocity है. हम लोग को ये डेटा से ही पता चल जाना चाहिए. मैं बोल रहा था. You guys can guess. अगर तुम लोग ने ग्राफ मेरा वीडियो अच्छे से देखा है तो you can easily guess कि ये यूनिफॉर्म क्या है, वेलोसिटी बता रहा है फ्रॉम डेटा. ये ग्राफ ड्रॉ करने का जरूरत भी नहीं है, बट यस क्वेश्चन में बोला ग्राफ ड्रॉ करना मतलब करना पड़ेगा. If you have a graph paper, please draw in a graph paper. I am repeating. Few of students have drawn in graph paper. They have it. I know during this condition सबके पास graph paper नहीं रहेगा. But if you have, please, I am requesting you to draw in a graph paper. ठीक है, that will help you very well. ठीक है, clear है. तो ये क्या बता रहा है यूनिफॉर्म, क्या बता रहा है मुझे वेलोसिटी. क्वेश्चन 2 क्या पूछा है, क्या बोला है, यूज अ ग्राफ टू कैलकुलेट द वेलोसिटी ऑफ अ कार. ठीक है, वेलोसिटी ऑफ अ कार ये रहा, कैलकुलेट किया. वेलोसिटी ऑफ कार इज 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर. ठीक है, कैसे करूंगा, कोई भी ले लो. ये अभी मैं तुम लोग को बता रहा हूं क्या कर सकते हो. हम लोग कोई भी डेटा ले सकते हो. ठीक है, कोई भी ग्राफ ले लो. ठीक है, ये पॉइंट पे ले लो, 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 ये पॉइंट पे ले लो. हमेशा मेरा आंसर क्या आने वाला है, 10 मीटर पर सेकंड कैलकुलेट करके बताया. ये लो. ठीक है, तो यहाँ पे अगर मैं बी नाम दे रहा हूँ, यहाँ पे ए नाम दे रहा हूँ. सो बी ओ. ठीक है, और क्या है ए ओ. तो हम लोग का फॉर्मूला क्या है, वेलोसिटी डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम. तो क्या आएगा, ए ओ अपॉन बी ओ. ठीक है, सो वेलोसिटी इज इक्वल टू ए ओ अपॉन बी ओ. व्हाट इज ए ओ, ए ओ कितना है, ए ओ कितना तुम लोग का 50. ठीक है, ये कितना है 5, तो 50 by 5 इज 10 मीटर पर सेकंड. यस और नो, यू कैन टेक एनी. ये चारों में से या पांचों में से कोई भी ले सकते हो. तुम लोग का आंसर क्या आने वाला है, 10 मीटर पर सेकंड ही आने वाला है. ऑलवेज समझ रहे हैं तुम लोग को, ऑलवेज क्या आएगा, 10 मीटर पर सेकंड ही आएगा. सो ये सेकंड क्वेश्चन का फर्स्ट पॉइंट था, फर्स्ट सब टॉपिक था. सेकेंड क्वेश्चन का और एक क्वेश्चन क्या बोला है, द डिस्प्लेसमेंट ऑफ अ कार एट 2.5 एंड 4.5 सेकेंड. ठीक है, मतलब ये रहा, यहाँ पे ये रहा 2.5 एंड 4.5 सेकेंड पे. ठीक है, आई विल यूज अनदर मार्कर, लेट्स सी. ठीक है, आई विल यूजिंग अनदर मार्कर. सॉरी, मार्कर गिर रहे बार बार यहाँ पे. आई डोंट हैव अ स्पेस. ठीक है, ये रहा, यहाँ पे ये मार्कर है 2.5 पे और 4.5 पे. ना वी नो दैट यूनिफॉर्म वेलोसिटी है, मतलब इक्वल डिस्टेंस क्या करेगा, इक्वल डिस्टेंस इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम कवर करेगा. अगर 2 से 3 सेकेंड में वो कितना कर रहा है, ये कितना कर रहा है 2 से 3 सेकेंड में 10 मीटर्स कवर कर रहा है. सो 2 से 2.5 कितना करेगा, 5 मीटर्स. मतलब कहां पे आएगा ग्राफ तुम लोग का, ये रहा यहाँ पे, ये रहा यहाँ पे आएगा. और ये कहां पे आएगा, ओके यहाँ पे, ओके सॉरी यहाँ पे आएगा. ये रहा, समझ रहे तुम लोग को, ये ब्लू लाइन ड्रॉ किया हो, ये दोनों. ठीक है, इट इज वेरी ऑब्वियस कि 2 से 3, ठीक है, 2 सेकंड से 3rd सेकंड पे जाने के लिए वो कितना कर रहा है, 10 मीटर्स कर रहा है. तो 2 से 2.5 मतलब हाफ, तो कितना करेगा 5 मोर 5, तो ये रहा 5 पे 25 पे आएगा. ठीक है, सेम चीज 4 to 5. ठीक है, 1 सेकंड में वो कितना कर रहा है, 40 to कहां पे जा रहा है, 50 में जा रहा है. सो हाफ सेकंड में कितना जाएगा, 5 मीटर्स. यूनिफॉर्म वेलोसिटी इसलिए मैं कर सकता हूं. तो कहां पे आएगा, 45 पे आएगा. समझा नहीं समझा. दैट मीन्स क्या बोला है, योर क्वेश्चन क्या बोला है तुम लोग को, फाइंड द डिस्प्लेसमेंट एट 2.5 is 25 meters. Displacement at 4.5 is your how much, 45 meters. ठीक है, ये ग्राफ पेपर होता मैं बहुत अच्छे से और एक्सप्लेन कर पाता, बट सिंपल है कि यहाँ पे तुम लोग का यूनिफॉर्म वेलोसिटी है. सो इट इज अंडरस्टूड कि अगर 2 से 3 सेकेंड में, ठीक है, अगर मैं 2 to 3 सेकेंड मतलब 1 सेकेंड में, ठीक है, मैं लिखूंगा 1 सेकेंड में वो कितना कर रहा है, 10 मीटर्स कर रहा है. सो ऑब्वियसली 0.5 सेकेंड्स में वो कितना करेगा, 10 मीटर्स का हाफ 5 मीटर्स करेगा. यस और नो, मतलब 2 to 2.5 वो 5 मीटर्स करेगा. आगे तो ऑलरेडी 0 to 2 मीटर्स है, उसने 20 तो ऑलरेडी कर लिया ना. सो 20 + 5, इसलिए आया आंसर 25. ठीक है, पूछा है 2.5 सेकेंड्स पे, तो मैंने 0 to 2 सेकेंड्स पे मेरे को पता है 0 to 2 सेकेंड उसने 20 मीटर्स कर लिए. मुझे 2 to 2.5 फाइंड करना, तो किया ऐसा 1 सेकेंड में 10 मीटर्स, तो 0.5 सेकेंड में 5 मीटर्स, क्रॉस मल्टीप्लाई करके कर सकते हो. 5 आंसर आएगा 5. समझ रहे. सेम चीज यहाँ पे मुझे पता है 0 to 4 40 मीटर्स कर चुका है वो. 0 to 4 सेकेंड 40 मीटर्स कर चुका है. बट 4 to 4.5 कितना किया, 4 to 4.5 वापस 5 मीटर्स और किया, तो 40 + 5 45 meters. Yes or no? That means displacement at 2.5 meters is 25. Displacement at 4.5 second is
45 मीटर्स। समझ रहा है कैसे आया? यस और नो? ठीक है, सो विल मूव फॉरवर्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन। ओके, सो विल गो टू नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोला है? ओके ओके, सो shows a displacement. Now we have already given a graph. ठीक है, वो पहले मैं ड्रॉ करता हूँ। थोड़ा सा ट्रिकी ग्राफ है, सो आराम से ड्रॉ करना पड़ेगा मुझे। ठीक है, बिकॉज बोर्ड है, ग्राफ पेपर होता है तो बहुत इजीली होता है मेरे लिए। x 0 1 2 3 4 5 5 10 सो काइंड ऑफ ये ग्राफ दिया हुआ है तुम लोग को। ठीक है, और यहाँ पे बोला है दिस इज ओके, यूज अ डिफरेंट। यहाँ पे बोला है ये बॉय 1 है और यहाँ पे ये बॉय 2 है। ठीक है, द बॉय 1 इज स्टार्टिंग फ्रॉम हियर एट 0 सेकेंड्स। ठीक है, ये जो दिया हुआ है ये टाइम आवर्स में दिया हुआ है, इसमें क्या आवर्स में। ठीक है, ये तुम लोग का क्या दिया हुआ है? तुम लोग का डिस्प्लेसमेंट दिया हुआ है किलोमीटर्स में। ठीक है, दिस इज द डिस्प्लेसमेंट इन किलोमीटर्स। ठीक है, समझा? तो क्या बोला है कि बॉय 1 इज स्टार्टिंग एट 0। ठीक है, ये पॉइंट पे जब भी वो रीच कर रहा है, ठीक है, मतलब उसने ऑलरेडी क्या किया? 10 किलोमीटर कवर कर लिया। कितने? 2 आवर्स में। ये रहा 2 आवर्स है। ठीक है, 2 आवर्स में उसने ऑलरेडी कितना कर लिया है? ठीक है, बॉय 2 यहाँ पे नहीं लिखता हूँ, कंफ्यूजन हो रहा है। ये 2 है, बॉय यहाँ पे 2 लिखता हूँ। बॉय 2 यहाँ से स्टार्ट कर। ये पॉइंट मैंने मार्क किया, ये रहा। ये पॉइंट है वो बॉय 1 का है, ये पॉइंट जो है बॉय 2 का है। बॉय 1 यहाँ से स्टार्ट कर रहा है, बॉय 2 यहाँ से स्टार्ट कर रहा है। सो बॉय 1 0 से स्टार्ट कर रहा है, जब भी वो यहाँ पे 10 किलोमीटर पे। ठीक है, यस और नो? तभी क्या कर रहा है? बॉय 2 इज स्टार्टिंग। दैट मीन्स बॉय 1 हैज ऑलरेडी कवर्ड हाउ मच? 10 किलोमीटर्स इन 2 आवर्स। आफ्टर दैट बॉय 2 इज व्हाट? स्टार्टिंग इट्स जर्नी। बॉय 2 यहां से स्टार्ट कर रहा है। कैन यू सी दिस ग्राफ? ये रहा, ये लाइन दिख रहा है, ये वाला जो लाइन दिख रहा है तुम लोगों को, ये लाइन जो दिख रहा है। ठीक है, बॉय 2 का कहां से? यहां से स्टार्ट कर रहा है। बॉय 1 ये रहा, बॉय 2 यहां से स्टार्ट कर रहा है 2 आवर्स पे, जब ऑलरेडी बॉय 1 ने 2 आवर्स का जर्नी, ठीक है, 2 आवर्स का जर्नी 10 किलोमीटर कवर कर लिया है। दैट मींस बॉय 2 स्टार्टिंग हियर। बट इफ यू सी, ठीक है, आफ्टर दैट दोनों एक पॉइंट पे मीट कर रहे हैं, ये पॉइंट पे। ठीक है, दैट इज वेरी ऑब्वियस कि बॉय 2 का स्पीड इज वेरी फास्ट। बॉय 2 इज ट्रेवलिंग वेरी फास्ट। इसने 2 आवर्स में 10 किलोमीटर किया, राइट? नाउ इट इज स्टार्टिंग। नाउ उसने ऑलरेडी क्या किया? यहाँ पे पहुंच गया। ठीक है, मतलब ये रहा यहाँ पे 4 आवर पे। ठीक है, 4 आवर पे जब हो गया, ठीक है, 4 आवर है यहाँ पे। ठीक है, ये रहा 4 आवर। सो यहाँ से 4 - 2 मतलब 2 आवर्स हो गया। 4 - 2, ठीक है। सेकंड बॉय का बात कर रहा हूँ, बॉय 2 का। ये रहा बॉय 2 है। ठीक है, सो बॉय 2 से 4 मतलब टोटल 2 आवर्स में वो 40 किलोमीटर कवर कर लेता है। समझ रहे हैं? बॉय 2 यहां से स्टार्ट कर रहा है और 4 आवर तक, ठीक है, दोनों का जर्नी यहाँ पे है, ये पॉइंट पे। ठीक है, मीट कर रहे हैं ये पॉइंट पे, मतलब उसने 2 आवर्स में 20 किलोमीटर कर लिया। उसने 2 आवर्स में 20 किलोमीटर कर लिया। बट ये बॉय 1 ने, उसको कितना 4 आवर्स लगा वो 20 मीटर्स करने के लिए। सो ऑब्वियसली स्पीड किसका ज्यादा है? किसका स्पीड ज्यादा है? बॉय 2 का। क्यों? बिकॉज बॉय 2 आवर्स में वो जर्नी कर रहा है। ठीक है, ठीक है, यहां पे लिखता हूं बॉय 1, बॉय 2। बॉय 1 टेक्स 4 आवर्स टू कंप्लीट 20 किलोमीटर्स। ठीक है, एंड बॉय 2 takes 2 hours to complete 20 किलोमीटर्स। ठीक है, कैसे पता चला 20 किलोमीटर्स दोनों कर? बिकॉज ये पॉइंट पे दोनों मीट कर रहे हैं। वो पॉइंट पे कितना है? 20 किलोमीटर्स है। सो दे आर मीटिंग एट दिस पॉइंट।
सो ऑब्वियसली बॉय 2 का वेलोसिटी इज ग्रेटर. वेलोसिटी कैसे फाइंड करोगे? वेलोसिटी इज व्हाट? डिस्टेंस अपॉन डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम. डिस्प्लेसमेंट कितना? 20/4 5 किलोमीटर पर आवर. ये क्या है? 20/2 10 किलोमीटर पर आवर. मतलब बॉय 2 का इफ आई एम राइटिंग बॉय 2 का स्पीड, ठीक है, बॉय 2 का स्पीड है ये बॉय 1 एंड बॉय 2. बॉय 1 का स्पीड है 5 किलोमीटर पर आवर. इसका कितना है? 10 किलोमीटर पर आवर. समझा कैसे पता चला? दैट मीन्स ऑब्वियसली बॉय 2 इज फास्टर. सो ये सब हम लोग ने, ये ग्राफ से हम लोग ने क्या कर लिया? कैलकुलेट कर लिया, समझ लिया. अभी तक क्वेश्चन तो पढ़ा ही नहीं, क्या पूछा है ये सब हम लोग ने समझा. नाउ विल गो टू द क्वेश्चन कि एग्जैक्टली पूछा क्या है. ठीक है, क्या बोला है? when did boy 2 और B, ठीक है, ये B बोला है इन्होंने, यहाँ पे A बोला है, मैंने boy 1 और boy 2 बोला. ठीक है, चलो B. ठीक है, when did B start after A? When did B start after A? So after 2 hours. ठीक है, so the answer will be, आंसर क्या रहेगा? B started his motion after 2 hours. ठीक है, of completing A और boy 1. समझा तुम लोग को? ठीक है, मतलब 2 hours के बाद boy 2 ने जर्नी स्टार्ट किया, बॉय 1 का 2 hours खत्म होने के बाद. नेक्स्ट क्वेश्चन, हाउ फार अवे वाज A फ्रॉम B व्हेन B स्टार्टेड? मतलब कितना दूर था. क्वेश्चन क्या बोला है? हाउ फार वाज बॉय 1, ठीक है, व्हेन बॉय 2 स्टार्टेड. मतलब कहां पे? ये रहा बॉय 2 यहां पे स्टार्ट कर रहा है, ये रहा. बॉय 1 कहां पे पहुंच गया? यहां पे पहुंच गया. मतलब बॉय 1 10 किलोमीटर पे था जब भी बॉय 2 जस्ट स्टार्ट कर रहा है. यस और नो? देखो यहां पे, ये देखो बॉय, ये रहा बॉय 2 है, यहाँ पे स्टार्ट कर रहा है, अभी जस्ट ये रहा स्टार्ट कर रहा है यहाँ पे. सो बॉय 2 ऑलरेडी यहाँ से लेके यहाँ तक पहुंच चुका है. ये रहा बॉय 2 ऑलरेडी यहाँ से लेके यहाँ तक, मतलब 10 किलोमीटर तक पहुंच चुका है ऑलरेडी. पर बॉय 2 तो जस्ट स्टार्ट कर रहा है. दैट मीन्स क्या क्या आंसर आएगा कि बॉय 1 हैज ऑलरेडी कवर्ड 10 किलोमीटर्स. यस और नो? एंड बॉय 2 इज जस्ट स्टार्टिंग. समझा तुम लोग को? यस और नो? नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द टू हैज अ ग्रेटर वेलोसिटी? कैलकुलेट करके बता दिया भाई लोग. ठीक है, क्या करना है? ये पॉइंट पे जो मीट हो रहा है वहां पे हम लोग ने क्या किया? दोनों का वेलोसिटी फाइंड किया. तो बॉय 2 का कितना वेलोसिटी? 10 किलोमीटर पर आवर. ठीक है, अभी कंफ्यूज मत होना, वहां पे A और B बोला है, मैंने बॉय 1 और बॉय 2 बोल रहा हूं, सो दैट यू कैन अंडरस्टैंड इन अ बेटर वे. ठीक है, बॉय 1 मतलब A हो गया, बॉय 2 मतलब B हो गया, याद रखो. नेक्स्ट, विच व्हेन एंड वेयर डिड B ओवरटेक A? अभी जो B मतलब बॉय 2 है, उसने बॉय 1 को कब ओवरटेक किया? कभी किया? जब वो एक पॉइंट पे मीट हुआ. ये पॉइंट से क्या हो गया? ठीक है, दोनों मीट मतलब एक सेम पॉइंट पे, दोनों 20 किलोमीटर पे है. यस और नो? ठीक है, दोनों 20 किलोमीटर पे मीट किया. ये पॉइंट पे मीट कर रहे हैं. ये बॉय क्या, ये क्या बॉय 1 है, ये बॉय 2 है, दोनों एक पॉइंट पे मीट किया. नाउ ऑब्वियसली बॉय 2 का स्पीड ज्यादा है तो क्या करेगा? फास्टर करेगा, बट अभी भी स्लो 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 स्लो. सो पॉइंट एट विच दे आर मीटिंग, ठीक है, आफ्टर दैट पॉइंट बॉय 2 और B has overtake A. समझा? मतलब B is overtaking A at this point. ठीक है, the point at which they are meeting after that. ठीक है, वो पॉइंट पे मीट हो गया, मतलब वो सेम पोजीशन पे 20 किलोमीटर पे, ये रहा सेम पोजीशन पे 20 किलोमीटर पे. आफ्टर दैट वो ओवरटेक करना चालू कर रहा है. कौन? B, मतलब बॉय 2. समझा? आंसर कैसे आएगा? क्लियर है? यस, वी आर डन विद दिस क्वेश्चन. सिंपल क्वेश्चन था, सिर्फ एक ग्राफ को स्टडी करना था और कुछ क्वेश्चंस पूछे थे, वो आंसर करना था. समझा? ऐसे क्वेश्चंस बहुत आते हैं. प्लीज मेक श्योर तुम लोगों को समझ रहा है ये. चेक. Clear? Next is your what? I'll be doing question number 3. Okay, I'll draw a graph again. The graph of velocity and everything is given. Okay, I'll check that again. I'll check. Okay. Yeah. So the graph is given. I'll draw the graph. 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 9, 11, 12, 13. ठीक है, 13 तक है. बहुत बड़ा ग्राफ है ये. यहाँ पे क्या 0, यहाँ पे क्या है 5, 10, 15, 20, 20 तक. ठीक है, ओके. सो
दिस इज अ ग्राफ गिवन, ठीक है, ये ग्राफ दिया हुआ है तुम लोगों को, ठीक है। अभी ऑब्वियसली हम लोग को दिख रहा है ग्राफ इज व्हाट अबाउट वेलोसिटी, ये वेलोसिटी है मीटर पर सेकेंड में और ये तुम लोग का टाइम है इन सेकेंड्स, ठीक है, ओके। सो वेलोसिटी टाइम ग्राफ दिया हुआ है। सो वेलोसिटी टाइम ग्राफ से क्या पता चलता है हम लोग को, क्या दिखता है, एक्सेलरेशन। दो चीज फाइंड कर सकते हैं वेलोसिटी टाइम ग्राफ से, एक तो एक्सेलरेशन हो गया, दूसरा क्या चीज फाइंड कर सकते हैं हम लोग, डिस्प्लेसमेंट। यहाँ पे दोनों चीज पूछा है, ठीक है, माइंड यू दोनों चीज पूछा है। पहले ये वेलोसिटी टाइम ग्राफ है तो ये रहा, एक्सेलरेशन ये पॉइंट पे क्या है, कांस्टेंट है, राइट। वेलोसिटी क्या है, सॉरी वेलोसिटी क्या है, कांस्टेंट है, वेलोसिटी चेंज नहीं हो रहा, मतलब एक्सेलरेशन 0 है वो टाइम पे, वेलोसिटी इज कांस्टेंट 20, ये पॉइंट पे वेलोसिटी इज 20 है, मतलब एक्सेलरेशन इज 0, यस और नो, क्लियर। सो क्या क्वेश्चंस पूछे हम लोग, देखते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन, the car travel with a uniform velocity of 20 meter per second for 5 seconds. The car is traveling with a uniform velocity of 20 meter per second, ठीक है, for 5 seconds, मतलब for ये फर्स्ट 5 seconds के लिए ये रहा, ठीक है, वो 20 मीटर पर सेकंड से ट्रैवल कर रहा है। आफ्टर दैट वो डीएक्सेलरेट हो रहा है 5 to 13 seconds में। क्या बोला फिर, द ब्रेक आर देन अप्लाइड, उसके बाद ब्रेक अप्लाई किया, वो 20 कार है, ठीक है, यहाँ पे कार है, कार 20 मीटर पर सेकंड से ट्रैवल कर रहा था फर्स्ट 5 seconds के लिए। आफ्टर दैट उसने यहाँ पे ये पॉइंट में ब्रेक अप्लाई किया, तो ऑब्वियसली ब्रेक मतलब क्या होगा, डीएक्सेलरेशन होगा, वेलोसिटी डिक्रीज होगा, यस और नो, ठीक है, अप्लाइड, एंड वो रिटार्डेड मतलब वो स्टॉप पे आया, ठीक है, ये रहा 0 पे, ठीक है, ये रहा वेलोसिटी 0 पे कभी आया, आफ्टर 8 सेकेंड, मतलब फर्स्ट 5 + 8 मतलब 13th सेकेंड पे, फर्स्ट 5 तो यूनिफॉर्म था, ठीक है। जब ब्रेक अप्लाई करना स्टार्ट किया आफ्टर 5 सेकेंड, वो आफ्टर 8 सेकेंड, 5 + 8 13 सेकेंड पे वो रेस्ट पे आया, रिटार्ड हो गया, ठीक है, समझा। नाउ द क्वेश्चन इज ड्रॉ अ ग्राफ, ठीक है, ग्राफ दिया नहीं था मैंने, ग्राफ वो इन्फॉर्मेशन से ड्रॉ किया, ठीक है। क्या इन्फॉर्मेशन दिया था कि फर्स्ट 5 सेकेंड्स के लिए वेलोसिटी टाइम ग्राफ ड्रॉ करना है, फर्स्ट 5 सेकेंड्स के लिए वेलोसिटी इज 20 कांस्टेंट है, ये इधर तक किया, फिर वो क्या हो रहा है, डीएक्सेलरेट हो रहा है फॉर नेक्स्ट 8 सेकेंड, एंड आफ्टर 8 सेकेंड वो स्टॉप हो गया। सो ये इन्फॉर्मेशन से मैं ग्राफ तो ड्रॉ कर सकता हूँ, इट इज वेरी इजी, ग्राफ ड्रॉ करना इज इजी, राइट, समझा, ठीक है। क्वेश्चन क्या बोला है, द डिस्टेंस ट्रैवल इन फर्स्ट 5 seconds, कितना डिस्टेंस ट्रैवल किया इन फर्स्ट 5 seconds। तो डिस्टेंस के लिए क्या है, हाउ डू वी कैलकुलेट डिस्टेंस इन फर्स्ट 5, हम लोग को पता है अगर वेलोसिटी टाइम ग्राफ दिया है तो एरिया अंडर द कर्व, क्या करना है, एरिया अंडर द कर्व, वेलोसिटी टाइम ग्राफ एरिया अंडर द कर्व, मतलब इधर एरिया अंडर द कर्व आएगा फॉर फर्स्ट 5 seconds, मतलब ये रेक्टेंगल आ जाएगा। क्या करूंगा मैं, एरिया फॉर रेक्टेंगल नाम दे दूंगा मैं यहाँ पे ए बी सी डी, कोई भी रैंडम नाम दे दो, ठीक है, बुक में अलग दिया रहेगा, अपन अलग देंगे, ठीक है, फर्क नहीं पड़ता। तो क्या करूंगा, एरिया, ठीक है, एरिया ऑफ क्या लिखूंगा, रेक्टेंगल, ये एरिया ऑफ रेक्टेंगल ए बी सी डी, क्या होता है, लेंथ इंटू ब्रेथ, कितना है लेंथ, लेंथ कितना है 5, ये सॉरी लेंथ कितना है 20, ब्रेथ कितना है 5, सो 20 into 5, आंसर क्या आएगा 100, यस और नो 100 मीटर्स, बिकॉज क्या फाइंड किया तुम लोगों ने, डिस्प्लेसमेंट। तो फर्स्ट 5 seconds में उसने 100 मीटर्स कवर किया है। एरिया अंडर द कर्व फाइंड करो, मैंने चीज बोला है, याद रखो, वेलोसिटी टाइम ग्राफ इज वेरी इंपॉर्टेंट। वेलोसिटी टाइम ग्राफ से दो चीज फाइंड कर सकते हैं, एक तो एरिया अंडर द कर्व से डिस्प्लेसमेंट, ये रहा, एंड चेंज इन वेलोसिटी करके एक्सेलरेशन, दो चीज हम लोग ने देखा है लास्ट वीडियो में, क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन, द डिस्टेंस ट्रैवल आफ्टर द ब्रेक अप्लाइड, ओह वाओ, सिंपल, डिस्टेंस ट्रैवल आफ्टर द ब्रेक अप्लाइड, मतलब ये रहा इतना, ठीक है, ये रहा नेक्स्ट पार्ट, इतना ये ट्राइंगल, तो यस और नो, तो वापस नाम दे दूंगा, ये बी, ये इसका नाम डाल दिया डी, सॉरी इसका नाम डाल दिया बी पी, यस और नो, पी डाल दिया, तो क्या रहेगा, ट्राइंगल बी पी सी, ठीक है, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, हाफ बेस कितना है 5 से लेके 13, मतलब कितना 8, यस और नो, यहाँ पे लिख सकता हूं, ये रब कर रहा हूं अभी, क्या करूंगा, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, क्या करना है, एरिया ट्राइंगल क्या है बीपीसी इज इक्वल टू, ठीक है, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, बेस कितना है, ये रहा 13 - 5, 8, हाफ इंटू हाइट कितना है 20, आंसर क्या आएगा 80 मीटर्स। समझा कैसे आया, दैट मीन्स फर्स्ट 5 seconds यहाँ पे उसने कितना किया, 100 मीटर्स कवर किया, और यहाँ पे कितना किया, 80 मीटर्स कवर किया। टोटल अगर पूछा रहेगा तो क्या, 100 + 80, टोटल 0 से लेके 13 seconds तक उसने कितना डिस्टेंस कवर किया, 100 + 80, 180 मीटर्स, सिंपल,
और वो पूछा भी है टोटल डिस्टेंस ट्रैवल, अरे वाह हो गया, टोटल डिस्टेंस ट्रैवल इज व्हाट, दिस प्लस दिस, ठीक है, लिखना पड़ेगा एरिया ऑफ रेक्टेंगल प्लस एरिया ऑफ ट्राइंगल इज इक्वल टू, फिर से वैल्यू डाल दो, कैलकुलेशन किया है, वैल्यू डालो 100 प्लस 80 गिव मी 180 मीटर पर सेकेंड, सिंपल हो गया। नेक्स्ट, acceleration during the first 5 and last 8 seconds. Now the question is very good. Now we are talking about find the acceleration. मैंने बोला था कि velocity time graph में दो चीज फाइंड कर सकते हैं, एक तो displacement कर लिया, now the second is acceleration. We are talking about acceleration. चलो करो फाइंड, चलो चलो कर सकते हो तुम लोग, मैं तो कराऊंगा ही, मैं तो हुई यहाँ पे करने के लिए, तुम लोग के लिए हेल्प करने के लिए, ठीक है। So acceleration during first 5 seconds. So acceleration का फॉर्मूला क्या, a is equal to v minus u by t, आया ना, कांस्टेंट है, ठीक है, चेंज इन वेलोसिटी है ही नहीं, ठीक है, तो क्या रहेगा, क्या रहेगा तुम लोग का यहाँ पे, एक्सेलरेशन क्या रहेगा तुम लोग का, क्या बोला यहाँ पे, सी एक्सेलरेशन ड्यूरिंग फर्स्ट 5 सेकेंड्स, तो एक्सेलरेशन ड्यूरिंग फर्स्ट 5 सेकेंड इन पार्ट ए बी इज 0, मतलब ये जो है ये एक्सेलरेशन 0 रहेगा। कैसे पता चला, ये करने का जरूरत ही नहीं है, मैंने तुम लोग स्टार्टिंग में ही बोल दिया ग्राफ में कि ये टाइम पे एक्सेलरेशन क्या रहेगा, 0, क्यों, बिकॉज तुम लोग का वेलोसिटी इज व्हाट, कांस्टेंट, यस और नो, कांस्टेंट वेलोसिटी है, समझा, देयर इज नो चेंज, ये चेंज v माइनस यू है ही नहीं मेरे पास, सो यहाँ पे क्या लिखूंगा, ये नहीं लिखूंगा, लिखूंगा वेलोसिटी इज कांस्टेंट, यस और नो, सो एक्सेलरेशन इज 0, ठीक है। सो इन फर्स्ट 5 सेकेंड योर एक्सेलरेशन इज 0, व्हाई, बिकॉज योर वेलोसिटी इज कांस्टेंट। बोले सर अभी भी नहीं समझा, हम लोग को समझाओ, सिंपल, अगर मेरा कार, ठीक है, ये भी कार है, ठीक है, मेरा कार, चलो ठीक है, मेरा कार कंटिन्यूसली 20 मीटर पर सेकेंड पे जा रहा है, ठीक है, 20 ऐसे 20 पे जा रहा है, ठीक है, मैं एक्सेलरेट कर ही नहीं रहा हूँ, एक्सेलरेट पैडल होता है ना, ठीक है, कार हो बाइक हो, एक्सेलरेशन का पैडल होता है, उसको मैं प्रेस ही नहीं कर रहा हूँ, मैंने उसको होल्ड करके रखा है 20 पे, तो 20, तो डू आई एक्सेलरेट करना मतलब और पुश करना तो और फास्ट जाएगा, 20 से स्पीड इंक्रीज या 20 से स्पीड डिक्रीज होगा तभी एक्सेलरेशन और रिटार्डेशन होगा, यस और नो, बट यहाँ पे स्पीड तो कांस्टेंट है, 20 पे ही जा रहा है, 20, मतलब ना एक्सेलरेट हो रहा है, मतलब ना स्पीड 20 से बढ़ रहा है, ना स्पीड 20 से कम हो रहा है, दैट्स व्हाई एक्सेलरेशन इज 0। अगर स्पीड कांस्टेंट है, मतलब ना वो इंक्रीज हो रहा है ना डिक्रीज हो रहा है, तभी एक्सेलरेशन 0 रहेगा, तभी एक्सेलरेशन क्या रहेगा, 0 रहेगा, समझ रहे तुम लोग को, इसलिए एक्सेलरेशन यहाँ पे 0 है। सेकेंड में तो इजी है करना, ठीक है, क्या एक्सेलरेशन क्या आएगा, v माइनस यू इज इक्वल टू v माइनस यू बाय t, टाइम कितना है 8 सेकेंड मेरा, 30 माइनस 8, तो टाइम क्या आएगा 8 सेकेंड, ठीक है। चेंज इन वेलोसिटी, पहले कितना था वेलोसिटी 20 से कितना हो गया 0, आया ना, इनिशियल वाज 20, तो इनिशियल कितना है तुम लोग का, u इज 20, तो क्या हो जाएगा 0 माइनस 20, तो आंसर क्या आएगा माइनस 20 बाय 8, yes or no, answer will be minus 20 by 8, which is we can say minus 10 by 4 or minus 5 by 2 or minus 2.5 meter per second square. That means this is your retardation. Obviously retard हो रहा है, ठीक है, stop, break अप्लाई किया, क्वेश्चन में बोला ना, so answer will be 2.5 but minus 2.5, समझा, because यहाँ पे क्या हो रहा है, velocity change हो रहा है, ठीक है, 20 से 0 हो रहा है, वेलोसिटी चेंज रहेगा तो एक्सेलरेशन या रिटार्डेशन होगा ही होगा, यस और नो, अगर वेलोसिटी कांस्टेंट है एक्सेलरेशन 0, ठीक है, चलो वेरी गुड, वी आर डन विद थर्ड क्वेश्चन आल्सो, ठीक है, we'll move to the next question, okay, so we are moving to the next question. Next question, I'll be starting with the fifth question and the seventh question, ठीक है, so I'll do one thing, पहले सेवेंथ वाला करता हूँ, ठीक है, सेवेंथ वाला थोड़ा इजी है तुम लोग के लिए, मेरे लिए डिफिकल्ट है, बिकॉज ग्राफ ड्रॉ करना मेरे को, ठीक है, बहुत इरिटेटिंग होता है, तो छोटे से बोर्ड में ग्राफ ड्रॉ करना, रब करना, एक सम सॉल्व करना, ठीक है, इट बिकम्स वेरी इरिटेटिंग, ठीक है। नाउ तुम लोग ने वैल्यू दिया हुआ है, ठीक है, एक टेबल दिया हुआ है, चलो टेबल ड्रॉ करो पहले, क्या क्या वैल्यूज गिवन है, ठीक है, यहाँ पे ये टाइम है और ये वेलोसिटी है, ठीक है, टाइम एंड वेलोसिटी दिया हुआ है 0, 5, 10, 15, 20, 25, 30,
सॉरी दैट वाज माय अलार्म, ठीक है, बाय मिस्टेक ही बच गया, ठीक है, सॉरी फॉर दैट इनकन्वीनियंस, ठीक है। सो टेबल, विल कम बैक टू दैट। टेबल दिया हुआ है, क्या बोला टेबल में, यहाँ पे ये 10 दिया हुआ है, ये 15 दिया हुआ है, ये 20 दिया हुआ है, फिर 20 है, यहाँ पे कुछ है नहीं, ठीक है, 10 15 है, 20 20, फिर 20 फिर 30 है, फिर 15 है, फिर 0 है। सो इफ यू सी, ठीक है, देखते हैं अपन क्या मस्त ग्राफ बनने वाला है, ठीक है। सो क्या करेंगे, पहले हम लोग ग्राफ लिख लेते हैं, ऐसा ड्रॉ कर लेते हैं। यहाँ पे क्या तुम लोग का टाइम है, यहाँ पे वेलोसिटी है, ये सेकंड्स में है, ये मीटर पर सेकंड में है, ठीक है। वैल्यूज क्या टाइम का, 0 5 10 15 20 25 30, ठीक है, ये तुम लोग का टाइम गिवन है। नेक्स्ट क्या गिवन है तुम लोग का, 10 20 30। वेलोसिटीज मैक्सिमम कहां तक है, ये 30 तक है, तो मैं लिखूंगा 10 20 एंड 30 तक, ठीक है। सो विल सी क्या बोला है फर्स्ट, ठीक है, अभी हो गया अपना लिख के, पहले ग्राफ ड्रॉ कर लेते हैं। 0 सेकंड, ठीक है, 0 सेकंड पे क्या है 10, ठीक है। व्हेन योर टाइम इज 0 सेकंड, वेलोसिटी क्या है तुम लोग का 10, मतलब बॉडी इज स्टार्टिंग फ्रॉम 10, ठीक है। योर कार इज इनिशियली स्टार्टिंग एट 10, समझा, मतलब यहाँ पे तो कुछ रहेगा नहीं, ये रहा तो क्या कहां से स्टार्ट हो, यहाँ से स्टार्ट हो रहा है, ठीक है। एट 0 सेकंड, ये रहा, एट 0 सेकंड योर वेलोसिटी इज 10, देन एट 5 सेकंड योर वेलोसिटी इज 15, ये सो एट 5 सेकंड योर वेलोसिटी इज हाउ मच, 15, ये रहा 15 यहां तक आ जाएगा, तो ऐसे कुछ ड्रॉ करूंगा, ये रहा 5 है, 10 यहाँ पे 20 और यहाँ पे 30, ये तुम लोग का 15 हो गया, ये रहा 5, ठीक है। सो फर्स्ट 0 सेकंड पे 10 है, फिर 5 सेकंड, ये रहा 0 सेकंड पे 10, 5 सेकंड पे ये 15, तो 10 के बीच में यहाँ पे 15 आ रहा है, ये रहा 15 बोला है। फिर 10 सेकंड पे कहां पे 20 पे, मतलब ये रहा 10 सेकंड पे 20 पे, ये रहा, तो ये लाइन में कंटिन्यू ड्रॉ करूंगा, ये रहा यहाँ पे पहुंचा, यस और नो, ठीक है। फिर क्या है, फिर 15 सेकंड पे भी 20 है, नहीं 20 सेकंड पे वापस क्या है 20 है, मतलब 10 से 1 सेकंड 10 to 15 कांस्टेंट है, 10 to 15 कांस्टेंट है, ठीक है। मतलब 0 सेकंड पे 10, फिर 5 सेकंड पे कहां पे पहुंच रहे, 15 पे पहुंच रही है, 5 सेकंड पे वो 15 पे पहुंच रही है, ये पॉइंट पे, ठीक है। फिर 10 सेकंड पे वो कहां पे 20 पे, ये रहा 10 सेकंड 20 पे पहुंच गया। फिर 10 to 15 नेक्स्ट 5 सेकंड वो 20 ही रह रहा है, दिख रहा है 20 20 20 कांस्टेंट है, ये पॉइंट पे, ये पॉइंट पे तुम लोग का वेलोसिटी क्या है, कांस्टेंट, वेलोसिटी कांस्टेंट, एक्सेलरेशन 0, यस, यहाँ पे एक्सेलरेशन 0 रहेगा, ठीक है। वेरी गुड, समझ गया तुम लोग को बच्चों लोग, वेरी गुड। नेक्स्ट क्या है, 15 to 20 सेकंड क्या हो रहा है, 30 पे जा रहा है, तो ये कहां पे गया, 30 पे गया, देखो 30 कहां पे, यहाँ पे 30 पे गया, ये यहाँ पे 30 पे गया, ठीक है। फिर 25 पे कहां पे जा रहा है, 15 पे आ रहे हो, मतलब नीचे हो रहा है, ये रहा 15 तुम लोग का, ये रहा, ये पॉइंट है, मतलब इट इज कमिंग डाउन यहाँ पे, यस और नो। एंड 38 सेकंड पे 0 होगा, मतलब यहाँ पे, यहाँ से ये रहा, एंड 38 सेकंड पे 0 हो गया। दिस इज योर ग्राफ, ठीक है, दिख रहा है ग्राफ। मैंने क्या किया, ये फॉलो किया टेबल, ये रहा टाइम 0 5 10 15 20 30, वही मैंने फॉलो किया। मेरा जब 0 सेकंड था 10 मीटर पर सेकंड वेलोसिटी था, 5 पे बढ़ के 15 हो गया, 10 पे बढ़ के 20 हो गया, फिर 10 to 15 के बीच में वेलोसिटी कांस्टेंट है, फिर 15 से 20 वापस वेलोसिटी इंक्रीज हो रहा है, ठीक है। फिर वापस 20 to 25 क्या हो रहा है, वेलोसिटी डिक्रीज हो रहा है, ये पॉइंट तक। फिर वापस 20 to 30 वेलोसिटी सीधा 0 हो गया, ठीक है। समझा तुम लोगों को, ये ग्राफ मैंने ये डिटेल से ही ड्रॉ किया हुआ है, तुम लोग ड्रॉ कर सकते हो, ठीक है। नाउ द क्वेश्चंस, लेट्स से क्या क्या पूछा, फॉर व्हिच इंटरवल, ओके, सो व्हाट आई डू, आई विल यूज अ डिफरेंट मार्कर, ठीक है। सो मैं वही मार्कर लेने गया था, सो आई यूज अ डिफरेंट मार्कर टू नोट द वर्ड, द पॉइंट्स, ठीक है। यहाँ पे A, देन आई हैव दिस B C, then this is your D point, ये D है, ठीक है, and this is your E point, ठीक है, ये 15 है, ठीक है, समझा। सो विल सी के क्वेश्चंस क्या क्या पूछा है, ठीक है। क्वेश्चंस क्या पूछा, फर्स्ट क्वेश्चन पूछा है तुम लोग ने, फर्स्ट क्वेश्चन इज फॉर विच इंटरवल ऑफ टाइम द बॉडी हैज अ यूनिफॉर्म मोशन, फाइंड द वेलोसिटी इन दिस टाइम इंटरवल, मतलब पूछा है कि यहाँ पे तुम लोग का क्या है, यूनिफॉर्म, ठीक है, यूनिफॉर्म मोशन है, तो बॉडी हैज यूनिफॉर्म मोशन फ्रॉम, ठीक है, यूनिफॉर्म मोशन कहां पे है, इफ यू सी यूनिफॉर्म मोशन इज हियर, यहां पे दिख रहा है, ये दिख रहा है, फ्रॉम 10 to what, this, yes or no,
ठीक है, A to B you can say that, ठीक है. So basically from time 10 second, okay, for which interval of a time body has a uniform motion. Okay, यूनिफॉर्म मोशन बोला. यूनिफॉर्म मोशन मतलब क्या आएगा, वेलोसिटी कांस्टेंट, ठीक है. यूनिफॉर्म मोशन मतलब वेलोसिटी कांस्टेंट. वेलोसिटी कांस्टेंट कहां पे, BC पे वेलोसिटी कांस्टेंट है. मतलब फ्रॉम 10 to 15 सेकेंड, ठीक है, फ्रॉम टाइम 10 to 15 सेकेंड योर मोशन इज यूनिफॉर्म. तो क्वेश्चन 1 का आंसर क्या है, ठीक है. क्वेश्चन 1 का आंसर इन पार्ट AB वी हैव यूनिफॉर्म मोशन, ठीक है. एज वी हैव कांस्टेंट वेलोसिटी, आगे लिखना है एज वी हैव कांस्टेंट वेलोसिटी, ठीक है. कांस्टेंट वेलोसिटी इसलिए. एंड और क्या पूछा है, फाइंड द वेलोसिटी इन दिस टाइम इंटरवल. सो वेलोसिटी कितना है, ये रहा वेलोसिटी 20, ये रहा 20 ना. सो आंसर क्या रहेगा, वेलोसिटी इज 20 मीटर पर सेकंड स्क्वायर. कांस्टेंट यूनिफॉर्म मोशन. अभी बोलो सर यूनिफॉर्म मोशन मतलब क्या रहेगा, यूनिफॉर्म मोशन क्या होता है, ठीक है. दैट मींस इट इज कवरिंग व्हाट, इक्वल डिस्टेंस. यस और नो. ये 20 मीटर पर सेकंड के वेलोसिटी क्या कांस्टेंट है. वेलोसिटी कांस्टेंट मतलब वो इक्वल डिस्टेंस ट्रैवल करेगा इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम, ठीक है. हम लोग ने पढ़ा यूनिफॉर्म मोशन. यस और नो. यूनिफॉर्म मोशन मतलब अ बॉडी व्हिच कवर इक्वल डिस्टेंस इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम विद अ कांस्टेंट वेलोसिटी इज नोन एज अ यूनिफॉर्म मोशन. मतलब B to C क्या है तुम लोग का फर्स्ट आंसर है, जहां पे क्या है यूनिफॉर्म मोशन है. समझा, क्लियर है. यूनिफॉर्म मोशन क्लियर. यस. नेक्स्ट क्या है तुम लोग का, फॉर विच इंटरवल ऑफ टाइम द बॉडी हैज एक्सेलरेटेड मोशन. कैलकुलेट द एक्सेलरेशन. सो एक्सेलरेटेड मोशन ये रहा, दिख रहा है हम लोग को. A to B एक्सेलरेट हो रहा है, ये कांस्टेंट है, ये भी एक्सेलरेट हो रहा है और ये डी एक्सेलरेट हो रहा है. सो A to B एक्सेलरेट हो रहा है, C to D भी एक्सेलरेट हो रहा है. तो दोनों पॉइंट आएगा. सो द बॉडी हैज एक्सेलरेटेड मोशन फ्रॉम A to B एक्सेलरेट हो रहा है एंड C to D भी एक्सेलरेट हो रहा है. तो दोनों आंसर आएगा, ठीक है. सो A to B एंड C to D both are accelerating. Calculate the acceleration. Acceleration दोनों पे. पहले इसका फाइंड करता हूं, ये रहा AB का फाइंड कर रहा हूं. So AB का फाइंड करने के लिए क्या करो, V minus U by T. V minus U फाइनल वेलोसिटी. A to B फाइनल वेलोसिटी कितना था, 20. इनिशियल कितना था, 10. आया ना. टाइम कितना गया, 0 to 10. So 20 minus 10 अपॉन 10. So आंसर क्या आएगा, 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर. यस और नो. आंसर क्या आएगा, 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ठीक है. सॉरी नो, 10 by 10 is 1. ओके माय बैड, सॉरी. 20 minus 10 is 10, 10 by 10. सो आंसर क्या आएगा, 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर. सो A to B का एक्सेलरेशन इज 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर. अभी C to D का करेंगे. C to D के लिए कहां पे है, C कहां से स्टार्ट हो रहा है, इनिशियल वेलोसिटी C का क्या है, 20 है. फाइनल क्या है, 30 है. सो V minus U 30 minus 20 अपॉन टाइम. दोनों के बीच में का टाइम कितना, ये रहा, यहां से लेके ये रहा यहां तक कितना टाइम है, 5 सेकंड. ये रहा, ये दिख रहा है तुम लोग को, ये और ये टाइम कितना है दोनों के बीच में, 5 सेकंड्स. दिख रहा है, ध्यान से देखो. ये रहा, ये पॉइंट यहाँ पे, ये पॉइंट यहाँ पे, यहाँ से आके कितना है, 15 और 20. तो टाइम कितना है, 20 minus 15, 5. तो आंसर क्या आएगा यहाँ पे, 30 minus 10 by 5. तो आंसर क्या आएगा तुम लोग का, 2.5 0.5 सॉरी 0.5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर. ठीक है, समझा तुम लोग को कैसे आया. ओके, 10 by 5 इज 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर. समझा. यहाँ पे क्या आएगा, 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर. ये रहा A to B 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर. ये कितना है, 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर. 10 by 5. समझा कैसे आया, यस और नो. ये क्वेश्चन समझा. नाउ द लास्ट क्वेश्चन वी आर टॉकिंग अबाउट. लास्ट क्वेश्चन क्या है, फॉर विच इंटरवल ऑफ टाइम द बॉडी हैज रिटार्डेशन. कैलकुलेट रिटार्डेशन. नाउ वी नो दैट रिटार्डेशन किसके लिए है, ये पॉइंट के लिए रिटार्डेशन है. ठीक है, A to E सीधा रिटार्डेशन है. कहां से स्टार्ट हो रहा है, D to E के लिए. ठीक है, सो मैं क्या करता हूँ, रब कर दूंगा. बाकी सब इन्फॉर्मेशन रब कर रहा हूँ. ये रहा, सब नहीं चाहिए अपने को, ये भी नहीं चाहिए, हो गया अपना. ठीक है, सो किसके लिए है तुम लोग का, D to E. ये E है. सो D to E V minus U by T. इनिशियल वेलोसिटी कितना है, ये रहा 30. फाइनल कितना है, 0. मतलब क्या रहेगा, इनिशियल कितना है 30, तो 0 minus 30 अपॉन इनिशियल कितना है 30 है, ये रहा. फाइनल कितना है, 0 है. इनिशियल 30, फाइनल 0. 0 मतलब ये रहा 0, यहाँ पे पहुंच रहा है, ये रहा 0 वेलोसिटी. ये तो टाइम 30 है, यहाँ पे 0 वेलोसिटी हो जाएगा.
बॉडी रेस्ट पे आ जाएगा 0, तो फाइनल माइनस इनिशियल, फाइनल 0 है, इनिशियल 30 है, 0 माइनस 30, टाइम इंटरवल कितना है, यहां से लेके 20 से 30, 20 से 30 मतलब 10, आंसर क्या आएगा -30/10, तो आंसर क्या आएगा -3 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, मतलब रिटार्डेशन कितना है 3 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, फ्रॉम डी टू ई बॉडी इज रिटार्डिंग, ठीक है, और वॉट एवर द कार और वॉट एवर इट इज रिटार्डिंग at the rate of 3 meter per second square, at the rate of 3 meter per second square, ये रहा, समझा कैसे ग्राफ करना है, ये समझा सब कैलकुलेशन, yes or no, I hope everything is clear, ठीक है, so I think we are done with this graph and everything, okay, yeah, one more last graph is remaining, so we'll discuss about that particular last graph, ठीक है, क्या बोला है, we'll see. Okay, so we'll see. Now the last question, what we have given is, okay, information criteria. We'll see. So I'll draw the graph. Minus 40, minus 30, minus 20. Minus 40, minus 30, minus 20, minus 10. 0, 10, 20, 30, 40, ठीक है, here 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, ठीक है, so the values are given, ठीक है, तो values के हिसाब से यहाँ पे values given है मेरा, ठीक है, क्या क्या given है, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 और 8, ठीक है, so 40 फिर 30, 20 फिर 10, 4 पे 0, minus 10, minus 20, minus 30 and 8 सेकेंड पे minus 40, ये वेलोसिटी है और ये ये टाइम है और ये वेलोसिटी है, सो दिस इंफॉर्मेशन आर गिवन, ठीक है, ये तुम लोगों को ग्राफ से इंफॉर्मेशन दिया, ये इंफॉर्मेशन दिया कि ये टाइम 0 है तभी तुम लोगों का 40 है, ठीक है, मतलब तुम लोगों का स्टार्टिंग कहां से हो रहा है, यहां से हो रहा है 40, देन 1 सेकंड पे 30 हो गया, मतलब यहाँ पे आ गया ये रहा 30, ठीक है, फिर 2 सेकंड पे क्या हो गया 20 हो गया, ठीक है, 3 सेकंड पे क्या हो गया 10 हो गया, 4 सेकंड पे 0 हो गया, तो तुम लोग का लाइन कैसे आएगा ऐसे, ठीक है, ये रहा 0 सेकंड पे 40 मतलब यहां से स्टार्ट हो रहा है, 1 सेकंड पे 30 मतलब ये रहा 30 पे 1 सेकंड पे ये रहा 30, ठीक है, फिर 2 सेकंड पे क्या है 20, 3 सेकंड पे क्या है 10 और 0 पे क्या है ये रहा 4 सेकंड पे 0 है, फिर अगेन नीचे भी वैसे हो रहा है, बट क्या हो रहा है तुम लोग का 5 सेकंड पे क्या -10, मतलब ये तुम लोग का ऐसे जाके यहां तक खत्म होगा, ठीक है, देख लो ऐसे ही आएगा, ठीक है, समझ रहा है तुम लोगों को कैसे आ रहा है, ठीक है, सो दिस इज योर ग्राफ, समझा, नाउ व्हाट दे आर टॉकिंग अबाउट, क्या पूछा क्या है, दे आर टॉकिंग अबाउट यूज अ ग्राफ टू फाइंड द मैक्सिमम हाइट रीच्ड बाय द स्टोन, अभी स्टोन इज थ्रोन वर्टिकली अपवर्ड्स, मतलब स्टोन को वर्टिकली अपवर्ड्स थ्रोन किया, नाउ अपवर्ड्स थ्रो कर लिया, वो एक पॉइंट पे रीच किया, ये पॉइंट पे, ठीक है, ये पॉइंट पे रीच किया, ये वेलोसिटी है, ये टाइम है, ठीक है, ये पॉइंट पे रीच किया, वो पॉइंट से वो नीचे आ रहा है, समझा नहीं समझा, ठीक है, इट इज कमिंग डाउन, सो डिपेंडिंग ऑन दैट वी हैव ड्रॉन अ वेलोसिटी टाइम ग्राफ, ये वेलोसिटी टाइम ग्राफ है, इनिशियल वेलोसिटी क्या बोला है क्वेश्चन में, बोला इनिशियल वेलोसिटी 40 है, ये रहा 40 से स्टार्ट कर रहा है, यस और नो, ठीक है, नाउ कैलकुलेट द मैक्सिमम हाइट बाय द स्टोन हैज रीच्ड, सो मैक्सिमम हाइट के लिए मतलब क्या आएगा, मैक्सिमम डिस्टेंस, हाइट मतलब क्या होता है डिस्प्लेसमेंट, तो वो कहां पे आएगा, यहाँ पे ये रहा एरिया अंडर द कर्व, ये रहा कर लो, ठीक है, हाफ इनटू बेस इनटू हाइट, हाफ इनटू बेस, बेस कितना है 4, हाइट कितना है 40, ठीक है, तो आंसर क्या आएगा 20 into 2, मतलब कितना आएगा 20 into 2 कितना आएगा, आंसर विल बी 80, ठीक है, ये मैक्सिमम हाइट मतलब यहां तक पहुंचेगा ना वो, ठीक है, यस और नो, यहां तक पहुंच रही है ये पॉइंट तक, तो ये तुम लोग का रहेगा मैक्सिमम हाइट रहेगा, सो क्या रहेगा, मैं वापस अगर नेमिंग दे दूं तो नेमिंग के लिए क्या आएगा, ये यूज अ डिफरेंट मार्कर, ठीक है, ये तुम लोग का ए, ये बी और सी ट्राइंगल, सो ट्राइंगल ABC for maximum height क्या रहेगा, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, बेस इंटू हाइट, बेस कितना है ये रहा 4,
ठीक है, हाइट कितना है 40, तो आंसर क्या आएगा 80 मीटर। सो मैक्सिमम हाइट कितना हो गया 80 मीटर। हाइट मतलब डिस्प्लेसमेंट है, तो ये रहा मैक्सिमम हाइट मतलब क्या हो गया 80 मीटर। ठीक है, क्वेश्चन 1 समझा। क्वेश्चन 2 क्या बोला है, व्हाट इज द नेट डिस्प्लेसमेंट एंड टोटल डिस्टेंस कवर्ड बाय द स्टोन। टोटल डिस्टेंस मतलब क्या आएगा, ये तो अपने को मिल गया, ये मिल गया। अभी इसका फाइंड कर दो, ये रहा। ठीक है, ये सो इसका फाइंड करेंगे, वापस क्या आएगा हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। ठीक है, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट इसके लिए करेंगे, तो इसका नाम क्या है, एबीसी हो गया, तो सी डी ई। ठीक है, ट्राइंगल सी डी ई। क्या लिखूंगा मैं यहाँ पे, ट्राइंगल सी डी ई। ठीक है, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। बेस वापस कितना है, ये रहा 8 - 4 मतलब बेस कितना है 4 ही है। यस और नो। हाइट कितना है, ये रहा हाइट तुम लोग का। ठीक है, हाइट क्या रहेगा तुम लोग का 40। यस और नो। नेट डिस्प्लेसमेंट एंड टोटल क्या पूछा है तुम लोग को, टोटल पूछा है। ठीक है, तो हाइट कितना रहेगा 40। ऑब्वियसली हम लोग नेगेटिव हाइट नहीं होता कभी भी, इसलिए हम लोग क्या लिखा पॉजिटिव लेंगे। सो इंटू क्या आएगा 40, तो आंसर वापस क्या 80 मीटर्स। सो टोटल डिस्टेंस कितना हो गया, व्हाट इज द टोटल डिस्टेंस, 80 + 80 मतलब इतना, यहां से लेके यहां तक कवर किया डिस्टेंस, मतलब टोटल डिस्टेंस इज टोटल पाथ कवर। टोटल डिस्टेंस का डेफिनेशन क्या है, टोटल पाथ कवर मतलब क्या आएगा 80 + 80 is equal to 160 meters is your total distance travel from here to here. Yes or no? Now but we are talking about one more thing, net displacement. Net displacement मतलब क्या होता है, ये जो तुम लोग का नेगेटिव है, यहाँ पे पॉजिटिव है, तो 80 - 80। Yes or no? नेगेटिव डायरेक्शन में जा रहा है। मैंने तुम लोग को स्टार्टिंग फर्स्ट वीडियो में बताया था कि ये डायरेक्शन है, अगर ऑपोजिट डायरेक्शन में जा रहा है तो सबट्रैक्ट होगा। तो ऑब्वियसली ये जो है पॉजिटिव डायरेक्शन है, नेगेटिव डायरेक्शन है, समझा। सो 80 - 80 मतलब कितना होगा 0। ठीक है, तुम लोग का नेट डिस्प्लेसमेंट विल बी 0। नेट डिस्प्लेसमेंट कितना होगा तुम लोग का 0। वाई 0, इट इज वेरी ऑब्वियस। 0 क्यों, ये पॉजिटिव है, ये नेगेटिव है, समझा नहीं समझा। ठीक है, एंड ऑफ द डे वो कहां पे रहेगा, यहाँ पे रहेगा, अपने खुद के पोजीशन पे आया, यहां से लेके यहां तक खुद के पोजीशन पे आया, मतलब 0 हो गया। फिर ये नेगेटिव है, तो ये 80 है, ये 80 है प्लस ये 80 माइनस, 80 - 80 विल बी 0। समझा, दोनों को ऐड करूंगा 80 और 80, तो क्या आएगा आंसर 0। सो नेट डिस्प्लेसमेंट इज 0 बिकॉज ये पॉजिटिव है और ये नेगेटिव है। ठीक है, मैंने बोला फोर्थ क्वाड्रेंट और ये क्या फर्स्ट क्वाड्रेंट, ये कौन सा है फोर्थ क्वाड्रेंट। फोर्थ क्वाड्रेंट में ये नेगेटिव होता है, ये फर्स्ट क्वाड्रेंट में पॉजिटिव होता है। ठीक है, सो अगेन 80 एंड 80 आंसर क्या आएगा 0। तो नेट डिस्प्लेसमेंट कितना है 0। समझ रहा है, यस और नो। सो वी आर डन विद ग्राफ के सम्स। Okay, I'll send you the worksheet which you guys have to solve and submit me by some dates. I'll give you all the updates. Yes or no? I hope everything is clear about graphs and everything. Okay? If any doubts, you can contact me. Thank you.